Hello everyone. Salam, adab, namaste. Today is a very special day for us because I have two very special speakers today. One is my senior at Aligarh, a very popular political leader now, Muhammad Adib Saab, who used to be student leader also at Aligarh, and our own Professor Vipin Kumar Tripathi, a very familiar face here at Washington, DC area. So they are very active in social, political circles in India, taking all the challenges against these autocratic regimes and situation right now in India. So me not going beyond this, I have invited Shireen, a very activist in Johannesburg and the rest of places. She's a co-founder of Peace Vision. She will introduce with Tripathi ji and Adipsa and do the opening remarks. Please, Shireen. Greetings of peace to everyone. Thank you. I will begin the program by giving a few remarks about pluralism, secularism, and democracy, the road ahead. And I also have the honor to introduce our esteemed speakers. As a peace educator, I want to convey hope to you and not hopelessness. So the first thing that I will say is that no matter how horrible things are, remember that love and cooperation naturally take precedence over hate and violence in human beings. If that were not true, humanity would have ended long time ago. So, pluralism, secularism, and democracy are favored by humanity and not homogeneity and dictatorship. Take hope from Nelson Mandela's words: no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. The second thing I would add, as someone who develops peace tools for Peace Vigil, is that the Hindu Muslim Bhai Bhai is not what most people think it is. As you will learn from Professor Vipin Tripathi, who not only understands the concept but teaches it powerfully, is that divide and rule has to be fought not only by uniting, but by uniting for something. That something in the case of India is the Constitution of India, which defines the country as a sovereign, socialist, secular, and democratic republic, and ensures that the government will provide its citizens justice, liberty, and equality. So it is not enough to talk of Hindu Muslim Bhai Bhai. Jobs, health, education, women's empowerment, ending of the caste system, environment, and people-centric economy. We must work for these. They are the real uniting factors. Otherwise, Hindu-Muslim Bhai Bhai is like any other Nara, which loses its meaning. The real challenge to fascism in India is coming from activists who work on labor, farmer, Dalit, women rights, and so on. They are also the ones who are fighting for secularism. So Gandhi's Ishwar Allah Tero Naam cannot be understood without his struggle against British colonialism. Similarly, the struggle against Hindutva cannot be fought without understanding whose economic interests the Sangh is serving. The last thing I will say is that the road ahead is difficult. I agree with it, but it will be made easier if the Indian diaspora is willing to actively participate to change things. What that means is that we must challenge the rise of supremacist ideas in the diaspora as well. The Indian flag was among the racist and violent crowd in DC on January 6th. This is as much a reality as the celebration of Golwalkar's birth anniversary by the Indian government yesterday. So please speak out. You are in a much better, much safer position than the 25-year-old Nadeep Kaur and the 83-year-old Stan Swamy. And if you lose a few
friends on the way, they don't like you anymore, that's okay. We need to keep our conscience alive. With those remarks, it is my great honor to introduce Professor Vipin Tripathi and Shri Muhammad Adib. Shri Muhammad Adib has been a leading voice of secular and Gandhian values in Indian polity. Born in Barabanki, he studied in Lucknow. In mid-60s, he joined AMU and was president of Student Union for 2 terms. He was helpful in creating a progressive and liberal image of AMU. As an independent member of the Rajya Sabha for 6 years, he participated in all crucial debates with great depth and articulation. Driven by the urge for an alternative media house, Shri Adib has created Savera Network Trust that is running a social media channel, Freedom Express. Dr. Vipin Tripathi is a plasma physicist from the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, where he also taught. Dr. Tripathi began his work against religious sectarianism when he was teaching physics at the University of Maryland. He founded the Sadbhav Mission, and as the name suggests, it works to promote communal harmony. He is a true inspiration, a true hero for me and for thousands of others. He has aptly been called the pamphlet man because he writes pamphlets on controversial topics such as the Babri Mosque demolition and Article 370, and distributes them in cities and towns. His pamphlets give facts and appeal for dialogue. Sometimes he is met with antagonism, but he faces it with logic and facts. He's constantly reaching out to people. Even just now, he was in Mumbai, Kolkata, and Azamgarh for 9 days, meeting with peace activists and common people. He also helps to run a few schools. I hope that all of you will be inspired by Shri Muhammad Adib ji and Professor Vipin Tripathi ji to be active in protecting India from fascism. Thank you. So kind of you, Shireen. Now, as we agreed, I think you should start your part, and then you can later switch to Muhammad Adib sir. बहुत बहुत शुक्रिया रजी साहब. ये मेरे लिए बेहद खुशी का मौका है कि आज मुझे आप लोगों के सामने बात करने का मौका है और अदीब साहब के साथ ये फ्लोर शेयर करने का मौका है. मैं हो सकता है कि बीच बीच में कुछ अंग्रेजी में ही बोलूं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो हिंदी में ही बात रखूं. मैं 3 टर्म्स आपने जो इस्तेमाल की, इंडियन डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, आई वुड लाइक टू मेक सम क्लैरिफिकेशंस because I visualize them slightly differently. Diversity, to me or to everybody, probably it implies that people of different faiths, different cultures, different languages, different thought processes live in peace with each other. They tolerate each other, not only tolerate, rather they allow everybody to live freely the way they want to live. But over the years, in Indian context, I consider that Indian society has been a divided house for 3,000 years. Caste has been a very dividing factor for us. और अंग्रेजों के आने के बाद religion has become a dividing factor. लेकिन there is a distinction between the two. हिंदुस्तान का समाज जब जातियों में बटा था, उस वक्त हिंदुस्तान के समाज में एक तरीके की हार्मोनी भी थी. ऑप्रेसिव था, लोअर कास्ट के लिए उनके पास रिसोर्सेज की मालकियत नहीं थी, उनके पास तालीम के मौके नहीं थे, इकोनॉमिकली दे वर एक्सप्लॉयटेड, सोशली सेग्रीगेटेड. लेकिन एक इस सेंस में हार्मोनी थी कि नाई है तो वो सबके बाल काटेगा, मोची है तो सबके लिए जूते बनाएगा, और ब्राह्मण मोची पे डिपेंडेंट था, नाई मोची पे डिपेंडेंट था, मोची नाई पे डिपेंडेंट था. कॉन्सिक्वेंटली इट वाज एग्रेरियन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. एंड इन दैट सोसाइटी एक खास बात थी कि हिंदुस्तान में रिलीजन के एतबार से राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट के हिंदुस्तान के बाहर जीसस क्राइस्ट जब क्रूसिफिकेशन हुआ तो वन ऑफ हिज डिसाइपल्स सेंट थॉमस
came to Kerala and केरला में भी उनकी कब्र है और तब से so इतनी openness थी in the society. It was caste hierarchy was very rigid here. Despite that, religion के perspective से हिंदुस्तानी society was open और उन्होंने Christianity उसी वक्त आ गई. Similarly, पैगंबर मोहम्मद के जमाने में इस्लाम came to India and it came to India through traders. और वहाँ का एक राजा था चेरामन पेरुमल केरला का और उसको उनकी बातें पसंद आई तो वो मुझसे मिलने भी चले गए. अब ये पता नहीं है कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब से मिले कि उनके किसी खलीफा से मिले, लेकिन सबसे पुरानी मॉस्क लगभग 1400 साल पुरानी केरला में ही है. तो इतनी ओपननेस थी. ये बात फजूल की है कि केरला हिंदुस्तान में इन्वेडर्स के जरिए इस्लाम आया और प्रोपेगेंडा करने वाले जिनको जहर भरना है, जिनके रगों में जहर भरा हुआ है, वो तो ऐसी बातें करेंगे आई थिंक. बट ये बड़ी दीगर बात है. एक बात और मैं डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में रखना चाहता हूं कि 20th सेंचुरी में जितना डिवीजन रिलीजन कास्ट के आधार पे हुआ उससे बड़ा डिवीजन क्लास ने किया है. और क्लास एंटोगनिज्म बल्कि डोमिनेंट फैक्टर रहा और उसके साथ साथ एक चीज निकल के आई, क्योंकि कास्ट ऑफ ये क्लास स्ट्रगल खड़ा हुआ, वर्किंग क्लासेस की हालत खराब रही, जो रिसोर्सेज और मार्केट पे जिनका कंट्रोल था उन क्लासेस की हालत मजबूत थी. तो फिर वो इक्वलिटी का मसला आया, एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने का मसला आया, सोशलिज्म कम्युनिज्म चालू हुए. और जब कोल्ड वार का पूरा पीरियड गुजरा, उस पूरे पीरियड में आइडियोलॉजी वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर पॉलिटी. और उसी में फिर मसला एक्चुअली एक कंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज वेदर इट अलाउज प्लूरलिज्म और नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि उस मुल्क में डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के रहने की गुंजाइश या जगह है कि नहीं है. अमेरिका में फॉर इंस्टेंस मैकार्थर के जमाने में एक जमाना आया जबकि वहां पे अगर आपका सोशलिस्ट विचारधारा से हल्का सा भी सोच है या हल्का सा भी कम्युनिस्ट विचारधारा का सोच है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है वहां पे अपनी बात को कह पाना. हालांकि आई नो सम प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज with very liberal and leftist thinking that they can survive there in academic circles. So अमेरिका की यूनिवर्सिटी का academic circle is more liberal than American political system. बल्कि हालत ये है कि वहां पे जब किसी मुल्क पे हमला हो जाए, अमेरिका का हमला कर दे और उसकी आप मुखालफत करना चाहो उसी वक्त, जैसे ये वियतनाम वार था. अब वियतनाम वार की मुखालफत बाद में तो हुई 60s में, लेट 60s में, लेकिन शुरू में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ए वर्ड अगेंस्ट दैट. इस तरीके का माहौल था वहां पे. तो पॉलिटिकल थॉट के लिए डाइवर्सिटी भी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और हिंदुस्तान में आज की जो सूरत है, इफ देयर इज ए hatred in the name of caste or religion, in particular religion, तो हिंदुस्तान में उतनी ही हेट्रेड आज आइडियोलॉजी को लेके है. अगर आप सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के हैं तो आपके लिए सब रास्ते खुले हैं. नौकरियों में तरक्की के रास्ते खुले हैं, नौकरी में अपॉइंटमेंट के रास्ते खुले हैं, आपके लिए पुलिस बहुत फेवरेबल रहेगी, कचहरी में आपके लिए फेवर मिल सकता है. लेकिन अगर आप उस विचारधारा से हटके हैं तो इवन गांधी विचारधारा के हो, समाजवादी विचारधारा के हो, साम्यवादी विचारधारा के हो, देन यू आर इन ट्रबल. और हिंदुस्तान में भी कई और दूसरे मुल्कों में भी है. मैं कहना यह चाहता हूं कि इन लास्ट 100 years हिंदुस्तान ने 2 फेजेस देखे. पहला फेज तो वो था व्हेन ब्रिटिश रूल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द कंट्री, और उसी पीरियड में उसके खिलाफ मास मूवमेंट खड़ा हुआ गांधी की रहनुमाई में और तमाम लोगों की रहनुमाई में. तो वो जो मास मूवमेंट का दौर चला, तो उसी के बाद कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान का जो इलीट था विच वाज सबसर्विएंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, तो उन लोगों के लिए जरूरत पड़ी कि भाई वी वांट टू काउंटर दिस मूवमेंट बिकॉज इट्स नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी, it's against the authority of Indian landlords also, Indian money lenders also, Indian ruling class also. तो वो उनको लगा कि this is just targeted against the entire ruling class.
फॉरेनर एज वेल एज नेशनल, तो उनको लगा कि भाई सम strategy has to be worked out, and communalism or sectarianism emerged as a weapon of this elite. और उसको पूरी मदद मिली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से या ब्रिटिश हुकूमत से, और हिंदुस्तान खैर चलो 1947 में आजाद हुआ, दो मुल्क बन गए, एंड फॉर 20 years वी वर एट पीस, और हिंदुस्तान की राजनीति पर सेक्टरियनिज्म वाज नॉट डोमिनेंट। लेकिन मैं मानता हूं कि उसके बाद 1969 में जब दंगे हुए अहमदाबाद में, भिवंडी में बहुत मैसिव वायलेंस हुआ, उस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में सेक्टरियनिज्म स्टार्टेड इमर्ज्ड एज ए वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स, और वो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गया 1989 में व्हेन टेंपल मूवमेंट स्टार्टेड। उसके बाद एक बहुत गजब की चीज सामने आई, और वो आया लिबरलाइजेशन का दौर। लिबरलाइजेशन के दौर ने कहने को तो टारगेट रखा कि हिंदुस्तान में पॉलिटी में सेक्टरियनिज्म इज द डोमिनेंट फोर्स, लेकिन मैं मानता हूं कि क्लास इंटरेस्ट वाज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स। ये हिंदुस्तान का जो इलीट था, उसके लिए जब मौका मिला अपनी मुनाफा बढ़ाने का, बाहर की कंपनियों को इनवाइट करके उनकी दलाली करके अपना कारोबार बढ़ाने का, और जब मीडिया पर कंट्रोल हासिल किया उसने इन 90s onwards, then sectarianism became their tool, but the major interest was to control all areas of economic endeavor, educational endeavor, religious endeavor in the country. हालत ये हुई है कि since 1990 हिंदुस्तान के ये जो रूलिंग एलीट है, जिसके लिए सेक्टरियनिज्म उसकी रगों में है, लेकिन उसने ही डोमिनेंट उसकी इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी है कि दबा के रखो, कुचल के रखो, लूट के रखो। And I think this is a very terrible situation that we are facing for last 3 decades. अब हालत ये हुई कि in last 6 years हमारे इस देश में ऐसी हुकूमत आ गई, कहने को उनकी भी एक आइडियोलॉजी है, कम्युनल आइडियोलॉजी, सेक्टेरियन आइडियोलॉजी, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं उसको, वो रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं उसको, नाम तो देने में अपनी मर्जी है। मतलब अल्लाह ताला ने, भगवान ने सबको जुबान दी है, कुछ भी आपने को कह लो, कत्ल करो किसी को, अपने आप को अहिंसक कह लो, वो तो आप कह ही सकते हो, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ फ्रीडम गिवन टू ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन अगर आप कैरेक्टर देखें इस पूरे रूलिंग रिजीम का, तो वो रूलिंग रिजीम, इसकी आइडियोलॉजी जो उन्होंने प्रोपाउंड की थी 1925 में, तभी से उसी आइडियोलॉजी को जीते चले आए। अब वो हुकूमत उनके हाथ में आ गई। लेकिन इसमें एक बात हमें दिमाग में रखने की है, और वो गांधी के पर्सपेक्टिव, गांधी ने उसमें क्लैरिटी लाए थे। गांधी जब आरएसएस नहीं बनी थी, लेकिन आरएसएस ही अकेला सेक्टेरियन फोर्स नहीं है, उनके अलग अलग वेरिएशंस है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सब में। मैं गांधी ने एक बात रखी थी, व्हेन ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया and he carried the mass movement, he led the mass movement for freedom. Gandhi said that I am not against British, but I am against the imperialistic character of the state. The state is a public institution. It runs on the sweat and blood of the masses. और इसकी जिम्मेवारियां हैं 3, it must be democratic. डेमोक्रेटिक के माने कमजोर से कमजोर तबके की भी उसमें आवाज हो, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, और उसके मसलों की भी आवाज हो। दूसरी बात, इट मस्ट बी अकाउंटेबल, एंड थर्ड, इट मस्ट बी प्रो पीपल। प्रो पीपल मीन्स इसकी पॉलिसीज जनता के हक में, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज एंड सो ऑन, प्रो पीपल होनी चाहिए। ये बात गांधी जी ने तब रखी थी। और इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही खड़ी हो गई है कि वी आर कन्फ्रंटिंग ए स्टेट जिसके पास मिलिट्री पावर है, जिसके पास हिंदुस्तान का जितना भी इलीट व्यापारी तबका है, कॉर्पोरेट इलीट, उसकी का सपोर्ट, उसकी ताकत है, उनको फंड वही करते हैं। और सबसे मुसीबत की जड़ यह है कि पूरा मीडिया इनके साथ है। बिसाइड्स ऑल दिस, दे हैव ए large cadre of millions and millions of cadre which जो वायलेंट है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक फायदा हुआ है, फायदा यह हुआ है, और जिसकी तरफ में जीसस क्राइस्ट से लेके पैगंबर मोहम्मद से लेके गांधी तक
जिस बात के लिए जोर देते रहे, वो जोर देने का वक्त हमें भी आ गया है, क्योंकि आप लोगों ने ये मशवरा दिया था कि रोड अहेड, इस पे जोर दिया जाए कि हमारे सामने रास्ता क्या है। तो मैं समझता हूं कि जब से ये हुकूमत आई है हमारे सामने रास्ता भी खुल गया है। रास्ता ये, मैं मानता हूं कि जितने बड़े जुल्म हिंदुस्तान में या दुनिया में होते हैं वो हुकूमत या गवर्नमेंट के कानूनों के जरिए होते हैं या उनकी मदद से होते हैं। अभी सरकार ने खुद ही, जब से उनकी सेकंड टर्म चालू हुई है, ऐसे कानून खड़े कर दिए जो ब्लेटेंटली एंटी पीपुल हैं। मतलब ये आप सोच नहीं सकते कि एक राज्य की जनता के प्रति आप कानून बनाओ और उससे ना पूछो, और आप पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य की जनता को ह्यूमिलिएट करके और तालियां पिटवाओ, उनमें अपनी तारीफ करवाओ, वार यूफोरिया जैसी सूरत पैदा कर दो। कश्मीर के सवाल पे ऐसा हुआ। उसी तरीके से पिछले बरस हमारे हिंदुस्तान के अवाम पर, जो हजारों बरस से इसी मुल्क का बाशिंदा है, नो स्टेट हैज राइट टू क्वेश्चन द सिटीजन्स ऑफ ए इंडिविजुअल। हाँ, चोर मकार कोई मिल जाए आपको, उससे पूछ पाछ लो, तू कहाँ का है, क्या किया तूने। लेकिन आम शहरी से, मेहनत की जिंदगी बसर करने वाले आदमी से नोबडी कैन क्वेश्चन कि तू यहाँ का नागरिक है कि नहीं है। इन्होंने कानून बना दिया। कहने को तो कानून बाहर से आए हुए जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनके लिए है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान से जो लोग इलीगली आ गए उनके हम दो खांचे करेंगे, दो कैटेगरी बनाएंगे। वन इज मुस्लिम कैटेगरी एंड सेकंड इज नॉन मुस्लिम कैटेगरी। जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं उनके लिए तो हम कहेंगे कि तू तो इलीगल माइग्रेंट है, कॉन्सिक्वेंटली यू आर इन्फिल्ट्रेटर, यू हैव टू गो बैक और यू विल बी अरेस्टेड एंड गो टू जेल। And those who are in the second category, they will be treated as refugees, and after 6 years they will be given citizenship of the country. ये दो वैसे अपने आप में ही गलत है, because 90% people coming from these countries to India illegally are workers. और वर्किंग क्लास का मजदूर आदमी काम की तलाश में आता है। You cannot, there's no distinction between a worker of whether his religion is Hindu religion or Islam religion or Christianity or whatever. तो ये, लेकिन ये गलत चीज निकाल रखी है। दूसरी बात ये कि इसके साथ में ही, इसके कुछ दिन पहले ही एनआरसी आसाम की एक रिपोर्ट आ चुकी थी। उस रिपोर्ट में नियरली 19 lakh people were out of NRC, the National Register for Citizens, and out of them about 5 lakhs were Muslims and 14 lakhs were Hindus. तो अब आप उनसे में कहोगे कि ये लोग जो बाहर रह गए, इनमें जो मुसलमान हैं, इन 5 लाख को तो हम कहेंगे कि तू तो आई विल सेंड यू टू जेल, एंड बाकी जो 14 लाख है उनके लिए विल प्रोवाइड ए सेफ पैसेज, या अभी आप हम रिफ्यूजी कहेंगे आपको, बाद में आपके लिए हम सिटीजनशिप दे देंगे। एंड देन यू हैव डिक्लेयर्ड सो मेनी टाइम्स कि हम एनआरसी पूरे मुल्क में लागू करेंगे। Then it's a serious question that you are questioning the integrity and citizenship of every individual in this country. तो आप धर्म बताओ अपना, and depending on religion, we will say whether you are a infiltrator or you will be questioned differently and you will be categorized differently. It is a terrible thing. It can never, दुनिया के किसी इंसाफ का पैमाने पे आप आंक लो इस बात को, कहीं ठीक ठहरती नहीं। लेकिन हुकूमत ने ऐसा किया है। तो करना यह है कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इसी किस्म के कानून वहां की सरकार बनाती थी हिंदुस्तानियों के खिलाफ, ये जो लोग यहाँ पे गिरमिट लेके या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे आते थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, दे हैव टू गो बैक और दे हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। तो गांधी जी ने उसी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से वहां पे सिर्फ 3% हिंदुस्तानी था, तो गांधी जी ने यह कोशिश नहीं की कि भाई मैं 97% बाकी लोगों को, उसमें 18% तो गोरे लोग थे और बाकी करीब 70% वहां के निग्रोस थे। तो गांधी जी ने ये नहीं कि हिंदुस्तानी लोगों को हक दिलाने के लिए मैं बाकी 80% लोगों को भी खुश करूं। उन्होंने कहा अगर उनके हक के लिए मुझे लड़ना है तो वो एक अलग मसला है, मैं उसके लिए लड़ूंगा,
लेकिन जिन 3% लोगों के की हक तलफी की जा रही है, उनके हक दिलाने के लिए मैं उनकी ताकत से ही लड़ूं। उनमें ताकत भगवान ने दे रखी है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने, भगवान ने ये ताकत दे रखी है कि जो जुल्म उसकी कम्युनिटी पर या उसके ऊपर हो, उसके खिलाफ वो बगैर हथियारों के, बगैर दौलत के, बगैर मसल पावर के, बगैर गाली गलौज के, भगवान ने जो अपन को आत्मा दे रखी है, सच्चाई का एहसास करो और दूसरों को सच्चाई सामने रखो। उसके लिए आपको जो कष्ट सहने पड़े, कुछ कत्ल होंगे आपके, कुछ शहीद होंगे, लेकिन उससे आपका रास्ता आप आगे बढ़ोगे। ये गांधी ने हमें सिखाया। तो वो मैं समझता हूं कि जब से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इनजस्टिस सामने आया है, आई थिंक हम आपस में न लड़ें। जीसस ने सिखाया, मोहम्मद साहब ने सिखाया, गांधी ने सिखाया, आपस में मत लड़ो, फाइट द स्टेट। तो एक तो रास्ता मुझे लगता है कि सीएए के एक सवाल पर ये चीज सामने आ गई, और कश्मीर के सवाल पे भी। कश्मीर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। जिस तरीके से यूपी का आदमी हिंदुस्तानी है, उसी प्रकार कश्मीर का आदमी भी हिंदुस्तानी है। अगर यहाँ के आदमी की हक तलफी इनजस्टिस है, तो कश्मीर के आदमी की हक तलफी भी इनजस्टिस है। दे आर पार्ट ऑफ अस। तो किसी भी शख्स पर जुल्म होता है, और फॉर्चुनेटली वहां पे भी मैंने देखा, जब मैं नवंबर में गया था पिछले बरस, तो वहां पे 11 बजे दिन से लेकर शाम के 5 बजे तक लोग दुकानें बंद रखते थे। कई महीनों रखा उन्होंने ये। इस वक्त का तो मुझे नहीं मालूम कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दे आर कंटिन्यूइंग, लेकिन ठीक है, लगातार नहीं कर सकता प्रोटेस्ट। गांधी जी ने भी आजादी का आंदोलन, ऐसा नहीं कि लगातार जेल में चलते गए लोग और आंदोलन ही कराते रहे। बीच बीच में मौके भी आते हैं, आपको रुकना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू रिग्रुप योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू फेस द सेकंड फेज ऑफ स्ट्रगल। उसी प्रकार ये दूसरा मसला इस बार खड़ा हुआ है किसानों का। अब ये चीज बहुत अच्छे सामने आ गई है, हालांकि बहुत दुखद है। 200 किसान मर चुके हैं, करीब 4 महीने उनको स्ट्रगल करते हो चुके हैं, 3 महीने तो दिल्ली में होने वाले हैं। लेकिन किसानों ने ना तो कोई वायलेंस किया है, और बल्कि कोर इशू को मोटी तौर पर, एनीबडी वुड अंडरस्टैंड दिस, एक मोटा आंकड़ा है कि हमारे हिंदुस्तान का जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है देश की, किसानों की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 1/4 है। तो ऑब्वियसली दे आर एट ए रिसीविंग एंड। व्हेन दे गो टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट, दे हैव नो वॉइस। द मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस, और प्राइस फ्लक्चुएशन से जो एडवांटेज होता है वो सारा का सारा ट्रेडिंग क्लास को होता है। एंड द न्यू गवर्नमेंट लॉज टोटली इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। ट्रेडर्स के लिए क्या सहूलियत होगी, उनको मुनाफा कैसे बढ़ेगा ताकि वो और ज्यादा इन्वेस्ट करें खेती में, इसी की बात रखी है उन्होंने। There may be some good points in there which I am unable to see, but maybe some of them can maybe explain better. लेकिन ओवरऑल अगर अपन पिक्चर को देखो तो मार्केट फोर्सेस के सामने किसान बेजुबान रहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री द फार्मर्स हैव गिवन वॉइस टू देयर पेन, टू देयर एक्सप्लॉयटेशन, टू देयर वॉइसलेसनेस। पहली बार खड़ा हुआ है किसान। मैं मानता हूं कि ये जो 2 आंदोलन खड़े हुए, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट पिछले साल और ये जो दूसरा आंदोलन इस बार का, यही हिंदुस्तान की असली आवाज है। मुझे एक बात का जरूर कहना है कि फिरका वारियत का एक इंटरनेशनल डायमेंशन है, उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1945 टू 1990, ये 45 साल का जो दुनिया पे वक्त गुजरा, उसमें सारी दुनिया के जितने भी कम्युनल फोर्सेस हैं, whether Buddhist, Hinduist, Islamist, whatever shade, they were together. They were subservient to the interest of the capitalist bloc. सारे के सारे एक साथ थे। और बहाना क्या होता था, यही हिंदुस्तान के में फिरका वारियत को खड़ा किया अंग्रेजी राज ने। इसके पहले रिलीजन के नाम पे फिरका वारियत थी नहीं। तो लेकिन इन्होंने तमाशा यह किया कि जब कोल्ड वार का पीरियड आया, तो पहले जिस तरीके से पैट्रोनेज करता था सेक्टेरियन फोर्सेस को हमारे यहाँ का कॉलोनियल रिजीम, ब्रिटिश रिजीम, आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान का जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कॉर्पोरेट क्लास है, उसने पैट्रोनाइज किया कम्युनल फोर्सेस को। तो मंडी इज द फाउंटेन हेड ऑफ सेक्टेरियनिज्म इन द कंट्री।
गवर्नमेंट तो अब बनी है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको मदद मिल जाती है, सिपाहियों से भी मदद मिल जाती है, मिलिट्री से भी कभी कभी मिल जाती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन प्राइमरीली द इंडियन कॉर्पोरेट इलीट, इकोनॉमिक इलीट and the officer class also, they are sectarian or they are the supporters of sectarianism. तो मैं हुआ ये कि अमेरिका जैसे कंट्री ने जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को टारगेट किया तो उन्होंने बहाना बनाया कि उस मुल्क में वहां की, जैसे सद्दाम हुसैन को निशाना बना लिया कि सद्दाम हुसैन जो है वो शिया लोगों के खिलाफ गलत है। अरे भाई ठीक है, he was maybe he had Shias had grievances against him, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बहाना बना के आप उस मुल्क को गुलाम नहीं बना सकते, उसको हमला नहीं कर सकते। So I think if there is an internal trouble in any country, whether communal problem और जैसे आजकल बर्मा में चल रहा है या कहीं और चल रहा है, I think any outside power, especially super power, should not intervene, should not make it a बहाना कि इसके बहाने हम जाके उस मुल्क को गुलाम बना ले। ये चीज ठीक नहीं है। आई थिंक ऑल डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज हैव टू स्टैंड ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, दे हैव टू फाइट ऑपरेशन ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। वैसे भी दुनिया में जितने भी, चाहे वो आप बोस्निया का उदाहरण ले लो, रवांडा का ले लो, या किसी मुल्क का, कांगो का ले लो, जिन जिन मुल्कों में सेक्टेरियन या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उन मुल्कों के लोकल लोगों ने उनके ऊपर काबू हासिल किया है, और बाहर के मिलकर हो तो बात अलग है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा रैप कर ले, टाइम का कंस्ट्रेंट्स रहेगा, आपका टाइम जो है काफी निकल गया है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात लगभग कह ही चुका हूं, जस्ट आई विल टेक ए मिनट मोर। माय पॉइंट इज दैट व्हेन वी आर फाइटिंग the unjust laws of the state, we are very conscious, and all these farmers, the anti-CA protesters, they were conscious that we are not going to waste the struggle on the support or strength of outside forces. और आखिर में एक बात मुझे अपने जो NRIs साथी विदेशों में रह रहे हैं उनसे कहनी है कि आप लोग हिंदुस्तान के अवाम को खांचों में बांट के मत देखो। यहाँ का आदमी हिंदू मुसलमान नहीं है, ये तो हमारी जिस्म पे लगे लेबल है। एवरी इंडिविजुअल बॉर्न इन दिस कंट्री इज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। सिर्फ इतने मामले में इस्लाम है कि किसी ने कुरान पढ़ के इंसानियत सीखी, किसी ने रामायण पढ़ के सीखी, किसी ने गीता पढ़ के सीखी, किसी ने बाइबल पढ़ के सीखी, लेकिन ये तो सिर्फ इंसान को इंसान बनाने के जरिए है। बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए फुल एंटिटी, और अगर हम इसको एहसास करेंगे, देन आई थिंक वी विल build India a better country. Thank you. Thank you, Tripathi साहब। जी अदीब साहब, अब आप प्लीज। जी मुझे बोलना है? जी जी, वेलकम। जी, thank you so much. You have given me opportunity to discuss something. I'm neither a scholar nor competent enough to say few words on this line, but since my childhood, I have an idea of India on which we feel the idea of India very much depend on the three subjects you have mentioned now. आज रियलिटी डिफरेंट है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जैसा अभी त्रिपाठी साहब ने कहा कि जिस माहौल में इस वक्त हिंदुस्तान आ गया है, वहां हमको सब जोड़ के बैठना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आपने ये कहा कि प्लुरलिज्म या डाइवर्सिटी, मेरी अपनी समझ ये है कि दुनिया के बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जो इमिग्रेंट कंट्री थे, और हिंदुस्तान की ये जो हिस्सा है ये आज का पुराना इमिग्रेंट नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करें तो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त का जो वाकया है कि समंदर आया और दुनिया बटी और माइग्रेशन हुआ, ये जमीन उस वक्त से माइग्रेंट एक्सेप्ट करती है। इसका इजहार
हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी है कि समंदर को मथा गया और विष निकला और दुनिया भागी। और आपको अंदाजा है कि ये वो दौर है जो 800 से 600 साल पहले वेदांत भी इसी जमाने में लिखे गए, और ये सब बराबर हिंदुस्तान में आते गए। और जैसे मौलाना आजाद ने कहा था कि सदियों से यहाँ मुख्तलिफ कौम के डेरे आए और उसकी जमीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और ये सिलसिला जो ईरान और तुर्की और सेंट्रल एशिया, यहाँ से जो लोग आए हैं, ये एक दिन तक नहीं आए, मुगल पीरियड तक आए। क्योंकि हुआ ये है कि मैंने एक प्रोफेसर सतीश चंद्रा की एक किताब पढ़ी थी बहुत जमाने पहले। उन्होंने कहा था कि ये माइग्रेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, क्योंकि इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी। मुगल सल्तनत, इस्लामिक सल्तनत कई सौ साल तक यहाँ थी। तो जैसे ही ये यूएसएसआर टूटा और मुख्तलिफ मुल्क बने, तो मैंने कई साल उन इलाकों में एज ए सयाह घूमा मैं, और मैंने जाके देखा कि वहाँ जो कल्चर था वो हमने अडॉप्ट किया हुआ था, हिंदुस्तान का वो कल्चर बन गया था। उनकी जबान जो हम उर्दू जबान बोल रहे हैं, रोजगार, मोहब्बत, दुकान, ये सारे अल्फाज वो पुरानी अल्फाज थे जो हमने अडॉप्ट किए। मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आया कि मैं जो ओश जो इलाका कहलाता है वो फरागा वैली यानी बाबर की बर्थ प्लेस है। तो वहाँ के गवर्नर ने मुझे खाने पे बुलाया, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और मुझसे उन्होंने जब महाभारत के किस्से बयान शुरू किए तो मैं हैरत ज़दा रह गया। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो महाभारत है ये तो हमारे गॉड थे, यानी ब्रह्मा और विष्णु हमारे गॉड थे, और हमारी साउथ का जो बादशाह था उससे हमारी लड़ाई हुई थी, यानी रावण से। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसपे हिंदुस्तान की जमीन ने सबको अडॉप्ट करके बनाया था। और इसी वजह से अगर आपको अंदाजा हो कि जब 1857 में बहादुर शाह जफर लाल किले के बादशाह थे, लेकिन जब बगावत शुरू हुई तो तात्या टोपे से लेकर और रानी की झांसी तक और मेरठ से लेकर और मुजफ्फरनगर तक हर तरफ का राजा महाराजा, उसने कहा कि हम लाल किले की लड़ाई लड़ेंगे। यही हश्र अवध में हुआ। ब्रजेश पदर 11 साल का लड़का था, उसको राजा तुलई ने, राजा महमूदाबाद ने, राजा महानगर ने, और ये जितनी स्टेट थे हिंदू और मुसलमान, उन्होंने उसको लीडर बनाया था। ये अलार्मिंग कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के लिए कि लाल किला अभी भी यूनाइटिंग फोर्स है। उसके बाद इनकलाबी कैफियत 1923 में हुई, जब गांधी ने चंपारण का किसानों का देखा कि वहां, उस वक्त उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और ये कहा कि ये एक ऐसी हुकूमत होगी जो डेमोक्रेटिक होगी, लिबरल होगी और सेकुलर होगी, और हर इंसान को वोट डालने का मौका मिलेगा। नतीजा हुआ कि जो जिम्मेदार थे, जो रऊसा थे, उनको ये एहसास हुआ कि अब वो आवाम जिसको हम जमीन के नीचे बिठाते हैं वो हमारे साथ हुकूमत करेगी। नतीजा हुआ कि आपको मालूम ही है, उसमें एनी बेसेंट और जिना और ये सिद्धार्थ शंकर रे के मामा, ये लोगों ने कहा कि भाई ये तो पागलपन की बात है। एंड इमीडिएटली सावरकर को जेल से छोड़ा गया और कहा गया कि गांधी की मुखालफत करो। नतीजे के तौर पर सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी का नारा दिया और जिन्ना ने 2 साल के बाद उसको सनद दे दी, स्वात कर दिया। ये वो किस्सा है जहां से शुरुआत हुई इस मुल्क में बंटवारे की। मैं समझता हूं कि नेहरू और गांधी का जो तस्वुर था हिंदुस्तान का, उस तस्वुर से उस वक्त से जो लड़ाई शुरू हुई वो अपने इंतहा को आज पहुंच गई है। नेहरू ये बात समझते थे कि दुनिया में हम हिंदुस्तान में जो नई हुकूमत बनाएंगे वो डेमोक्रेटिक होगी, लिबरल होगी और सोशलिस्ट होगी, सबको हिस्सेदारी का हक होगा। इसकी मुखालफत उस वक्त नेहरू के जमाने से शुरू हुई।
नेहरू एक विजनरी आदमी थे। वो जानते थे कि यूरोप में एक मजहब है, एक कल्चर है, एक खाना है समवॉट, लेकिन जबान पर मुल्क बट गए, पूरा यूरोप जबान पे बट गया। उनको मालूम था कि हम जिस हिंदुस्तान का तस्वुर कर रहे हैं वहां सैकड़ों जबानें हैं, न जाने कितनी खाने और पीने और इखलाकी हर चीज मुख्तलिफ है। उसको जोड़ने के लिए एक हिंदुस्तान का जो तस्वुर था, उस तस्वुर से लड़ाई होते होते हम यहाँ तक पहुंच गए। आप देखिए पूरा यूरोप जबान पे बट गया। हम साउथ इंडिया जाते हैं, हमें उनके खाने भी अच्छे नहीं लगते, उनकी जबान भी नहीं जानते। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई चीज किसी चीज से मिलती नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कुछ दीवाने ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा। मुझे कोई ये बताता नहीं है आरएसएस का। लेकिन मैंने कई मीटिंगें की इनके साथ और मैंने कहा कि अगर तुम हिंदुस्तान का उस वक्त सरवारकर का और बुलवारकर के कॉन्सेप्ट को मान लिया होता और अगर ये हिंदू स्टेट बनता जैसे वो पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट बना, तो क्या कश्मीर तुम्हारे पास होता? क्या शेख अब्दुल्ला तुम्हारे साथ आते? वो सेकुलर हिंदुस्तान में आए थे और 32% मुसलमानों ने जिना को वोट नहीं दिया था। और अगर ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर हो गई होती और नेहरू और गांधी ने हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दी होती, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बना होता। और अगर ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दी होती उस वक्त, तो पंजाब में खालिस्तान कब का बन गया होता। लेकिन इन कम अक्लों की समझ में ये बात आज भी नहीं आती। जिस माहौल में हम आज जिंदा हैं वो तात्सुब नहीं है, एहसास से कमतरी में झुलसी हुई लाशें हैं जिनको डर लगता है लाल किले की बुलंदी से, कुतुब मीनार की मीनारों से उनको खौफ आता है। उनको मुगल सराय से नाम बदलने से उनको दिल को सुकून मिलता है। एक ऐसा माहौल खड़ा किया है। और जिस मुल्क में सेकुलरिज्म नहीं है वहां डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप अंदाजा कीजिए, त्रिपाठी साहब ने बहुत तफसील से बताया किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? वो एक जहर बोल रही है। उसने एक नई तरकीब शुरू की है। वो कहते ये है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को चने सुना दिए, हरा दिया, हम बहुत प्राउड हैं। एहसास से कमतरी जो है उनकी, वो कहती है अकबर जो है वो तो हार चुका था उनसे। अब एक नया तमाशा आपने सुना होगा, शायद आपको नहीं मालूम है। चंद दिन पहले छोटी छोटी जो जातें हैं जो जो बैकवर्ड कहलाती हैं, उन बैकवर्ड को भी ये कहा गया कि तुम्हारे भी आइकॉन थे, और वो आइकॉन वो थे जिन्होंने मुसलमानों को मारा था। बहराइच एक कस्बा है, शहर है यूपी में, वहां एक बड़ी तादाद राजभर कौम की रहती है। राजभर ये बैकवर्ड कम्युनिटी है। अब उन्होंने कहा कि भाई एक राजा सुहेल देव थे जिन्होंने सालार जंग को मारा था, तुम्हारा जो लीडर है उसने मुसलमानों की पिटाई करी थी, तो यू शुड हैव ए प्राउड। इसी तरह से अवध में एक कम्युनिटी कहलाती है, वो पासी कहलाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट है। उनका एक बलदेव पासी एक पहलवान निकाल दिया उन्होंने, उनका ये भी राजा था और ये मुसलमान अवध के नवाबों को मारता था। तुम क्यों खामोश हो? इसी तरह से यहाँ वेस्टर्न यूपी में गोकुल जाट एक राजा था जो मुसलमानों को मारता था। आप तसव्वुर कीजिए कि किस रविश पे जा रहे हैं ये क्या सोचना चाहते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की भी है। नेहरू एक ऐसा विजनरी आदमी था जिसने लड़ाई लड़ी बराबर, उसके बाद उसका साथ देने वाले लोग नहीं रहे। अफसोस ये रहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वो अपने वजूद के लिए लड़ती हैं, उनको मुल्क की परवाह नहीं रही। इस मुल्क में कुछ भी हो जाए, नौकरियां खत्म हो जाए, मजदूर मर जाए, कारोबार खत्म हो जाए, लेकिन मियाँ को ठीक करना है। जब ये तस्वुर बन जाए और वोट इस पे मिलने लगे, तो आप बताइए कि ये वो मुल्क कैसे कहें हम, किससे कहें कि हमको गर्व है। मुझसे लोग कहते हैं कि गर्व से कहो, क्या कहें गर्व से? जिस मुल्क में इंसान को इंसान मारकर और जश्न मनाए हम कह दें कि हमको अपने मुल्क पे नाज है, नहीं है, हम शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं जिस मुल्क में किसानों पर गोलियां चले और मारे जाएं और कहें कि पुलिस को मजलूमों की सिसकियां न सुनाई पड़े। उस पे हम कैसे कह दें कि हमको बड़ा फख्र है। हमारा तसव्वुर 75 साल के बाद हमसे पूछे कोई कि हम कहाँ खड़े हैं, अफसोस ये है कि हम उस मुल्क में मरना नहीं चाहते जिसका तसव्वुर सरवारकर और गुलकार ने देखा था। परसों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सरवारकर की और गुलवारकर की जश्न मनाया। इस मुल्क में गोडसे के मंदिर बनते हैं। हमसे पूछा जाता है कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो। दुनिया खामोश है, इसलिए कि दुनिया अब उसूलों पे नहीं चलती है, दुनिया अब बाजार पे चलती है। अब मुल्क अपनी आइडियोलॉजी पे नहीं चलते। इस समाज ने ऐसी करवट ली है जहां अखलाकियात खत्म हो गई हैं, जहां कोई शख्स कोई उसूल का पाबंद नहीं है। जेब में रकम कैसे आए, पैसा कमाने का जुनून खून की रगों में दौड़ गया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते इस मुल्क में कि यहाँ पर अदालतें हुकूमत से पूछ के फैसले करती हैं और हमसे कहा जाता है कि गर्व से कहो। हम हंसते थे पाकिस्तान की जुडिशरी पर, हम मजाक उड़ाते थे उनका। आप अंदाजा कीजिए, अभी पिछले 3 साल पहले, 1 साल पहले 3 बिल आए एनआरसी का, यानी मजहब के नाम पर कहा यह जा रहा है कि ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, आईन हमारा सब कुछ है। कहा गया कि अगर तुम फला फला मजहब के हो तो तुम वेलकम हो, और अगर तुम फला मजहब के हो तो तुम इस मुल्क के शहरी नहीं हो। वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक, जो पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है, आवाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंची। फिर कहा गया कि 370 हम खत्म करेंगे। आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स मालूम है कि जब ये पार्टीशन हुआ था तो ये तय हुआ था कि जहां मुसलमान अक्सरियत में है वो पाकिस्तान में जाएगा, और जहां हिंदू अक्सरियत में है 3 स्टेट, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये एक ऐसी स्टेट थी, जम्मू कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की थी और हाकिम गैर मुस्लिम था। हाकिम महाराजा हरि सिंह, उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल पार्टी ने, कॉन्फ्रेंस ने 28 दिन तक पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़के वैली को बचाया था। 14 साल जेल में गुजारे। आप बताइए, मैंने कहा था शेख अब्दुल्ला साहब से, इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, मैं उनको बहुत मानता था। उनके बेटे भी मेरे दोस्त हैं, चंद दिन पहले आए थे यहाँ, मैं मिलने गया था, तो मैंने कहा कि फारूक भाई, जब आपका ये आलम हो गया तो हम कहाँ जाएं? डेमोक्रेसी के सवाल ये है, पार्लियामेंट में नेहरू
हमेशा पार्लियामेंट में आते थे। आज का प्राइम मिनिस्टर विजिटर के हैसियत से पहले दिन जाता है और आखिरी दिन जाता है, बगैर किसी तकल्लुफ के। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जितना चाहे पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, जबकि प्रिविलेज का प्रोविजन मौजूद है। आपको याद होगा जिस वक्त 370 लगाया गया, फारूक साहब जेल में बंद थे। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने बिल्कुल बंद नहीं किया, वो आना चाहे तो आए। देयर वाज नो प्रिविलेज, कोई मोशन नहीं मूव हुआ। ऐसे में जहां मीडिया सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बात करे, तो आपको मालूम है कि जब कलम बिक जाता है तो जमीन पे बोझ होता है। कलम वो कुव्वत है जो समंदरों के रुख बदल देती है, हवाओं के रुख बदल देती है। यहाँ तो वो भी नहीं रहा। यहाँ तो पुलिस, यहाँ की इंतजामिया एक नफरत पे उसके भंडल भरी हुई है। एक नौजवान बच्चे, इनको हिंदुस्तान का अंदाजा ही नहीं है। नई नई चीजें तैयार की जा रही हैं। आप सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ये हुआ। डेमोक्रेसी को ऐसे वैसे करके नहीं तोड़ा है। डेमोक्रेसी के बहुत से वाकयात हैं, ये उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। मुझे याद है 67 में कमला, हमारे सीबी त्रिपाठी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह उनके होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक दिन हाउस में खड़े होकर कह दिया कि मैं 70 IMLA लेकर पार्टी छोड़ रहा हूं, इसलिए कि आई हैव नो फेथ ऑन माय चीफ मिनिस्टर। Immediately CB Gupta resigned. The people said, why you are resigning? You are still in majority. He said, no, if my home minister doesn't have confidence on me, I'm going to resign. Resign किया, वो हार गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए लिखा गया था। अब आप देखिए, इलेक्शन ऐसे नहीं लड़ा जाता। एक तो दौलत से, मीडिया से, और जीतने या हारने के बाद खरीदारी करके। ये इसको कैसे कह दें कि ये दुनिया की बहुत बड़ी वाइब्रेंट एक डेमोक्रेसी है, जहां जानवरों की तरह MLA और MP बिकते हो, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट महीनों मिनटों में गिरा दी जाती हो। ये ऐसी शक्लें हैं जिसका तस्वुर आप वहां बैठ के तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अंदाजा हम लोग कर रहे हैं। हम रोज अपनी हिंदुस्तान की रूह को मरते हुए देख रहे हैं। हम रोज हिंदुस्तान में गांधी को कत्ल करते हैं। हमने कत्ल एक दिन में नहीं किया है, किस्तों में कर रहे हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हर शख्स अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ रहा है। ऐसी शक्ल में आप लोग जो फिक्र करते हैं, ये हौसला हमको देते हैं, हमें जीने की आरज़ू देते हैं। हमें दिल चाहता है कि हम कुछ जिंदगी और जी लें, शायद ये मुल्क बच जाए। आप अंदाजा कीजिए, ये मुल्क जहां खड़ा है, उस मुल्क में अब हालत ये है कि कहते हैं कि साहब एक प्रोपेगेंडा है कि साहब हिंदू लड़कियों को मुसलमान लेके भाग रहा है। लव जिहाद शुरू हो गया। हकीकत ये है कि इनको ये एहसास नहीं है हाकिमों को, वो क्या जाने मोहब्बत क्या चीज होती है। कोई बीवी को छोड़ के भाग गया हुकूमत करने, कोई अपने खानदान को छोड़ के भाग गया हुकूमत करने, यहाँ तक कि बाप मर गया उसकी करिया कर्म करने के लिए भी नहीं गए। उन्हें क्या मालूम है कि मोहब्बत क्या चीज होती है। ये नफरत से झुलसी हुई आत्माएं हैं, इनको मोहब्बत समझ में नहीं आती। इन्हें कौन समझाए कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। कौन समझाए इनको। लेकिन आप तस्वुर कीजिए, हम ऐसे हिंदुस्तान में खड़े हैं। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या हो। यह सवाल बहुत बड़ा है। कहीं कहीं उम्मीद की किरण भी जागती है। आपको याद होगा कि जिस वक्त एकदम से लॉकडाउन किया गया था, गरीब सड़कों पर निकल पड़ा था, उसको अपनी मंजिल का पता नहीं था। कोई पटरी पे कट रहा था रेल की, कोई सड़कों पे ट्रकों से और
व्हीकल से मर रहा था, किसी के पास खाने को नहीं था, लेकिन यहाँ की आवाम ने उनको गांव गांव सड़कों सड़कों अपने हाथों से पानी पिलाया, खाना खिलाया, न ये पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है और तुम्हारी बिरादरी क्या है। ये पहली रोशनी थी जो दिखाई पड़ी थी, ये पहली रोशनी थी। आज वही कुछ किसान के आंदोलन में दिख रहा है। शायद ये एक दूसरी मंजिल है जहां मैंने देखा कि एक खालसा सरदार बैठा है, उसके बगल में एक जाट अपना हुक्का पी रहा है, और एक जोश है, एक उम्मीद है कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। अगर इस तरह के मूवमेंट होते रहे तो उम्मीद की किरण बखती है, और उम्मीद इसलिए भी है कि मेरे दोस्त जिन्होंने अभी आपसे खिताब किया, अभी ऐसे लोग बहुत से कायम हैं। इसलिए नाउम्मीदी नहीं है, लेकिन दिल का दर्द है जो मैंने आपसे बयान किया है। आज प्रोफेसर त्रिपाठी, आज मुसलमानों को यह चाहिए कि अब अपने हिंदू भाइयों की मदद करें। इन्होंने हमको 70 साल तक हमारी मदद करी, ये खुद अब खतरे में पड़ गए हैं। अब इनके ऊपर इल्जाम आने लगे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बनने लगी है। नौजवान बच्चियां पकड़ी जा रही हैं, जेलों में भेजा जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं, हालांकि अगर ये भी कामयाब ना हुआ तो मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, मेरा बहुत मजाक उड़ा था, लेकिन शायद वो वक्त भी शायद आना पड़ेगा जब मैंने कहा था मुसलमानों से कि अगर सेकुलर पार्टियां मुत्तहिद नहीं होती हैं तो कम से कम एक इलेक्शन के लिए टोटल बाइकआउट कर दो। अब कह दो ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ना हम वोट देंगे, ना लड़ने जाएंगे। इस मुल्क में लड़ाई रोजी और रोटी की होनी चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान की। ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ शायद वो स्टेज नहीं आएगा, लेकिन समझ ये नहीं आता कि जब ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और पुलिस जालिम बन जाए, खुद आतंकवादी बन जाए, तो कैसे लड़ा जाए। नौजवान बच्चा, उसको आज नौकरी की फिक्र है, उसको तारीख मालूम नहीं है, वो ये जानता नहीं है कि ये हिंदुस्तान द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया था क्या, और ये हिंदुस्तान था बना किस लिए था। अगर हमने यही करते रहे हम, अब आप देखिए कि आज किसानों के मसले को डाइवर्ट कैसे किया जा रहा है, यानी उससे लड़ाई, किसान से बात नहीं हो रही है, अब हो रहा है कि राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा दीजिए, और सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं और प्रोगेटिव नारे लगाते हैं कि किसी तरह से माहौल किसानों से हटके फिर वहां आ जाए। और अगर उनसे पूछा जाए कि तुमने आज से 30 साल पहले जो चंदा जमा किया था वो कहाँ गया, तो आप बेलतुलोई हो जाएंगे, आपके कत्ल कर दिए जाएंगे। तो ये वो सब करते रहेंगे, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा, मैं समझता हूं कि ये जमीन ऐसी जमीन है जिसको, जहां हमारे हिंदू भाइयों ने गंगा और जमुना में स्नान करके अपने को पाक किया था, हमने भी उसी पाक पानी में वजू करके सजदे किए थे। इस जमीन को हमने पाला था, और इस जमीन पे हम समझते हैं कि उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, लेकिन हालात यकीनी तौर पे बहुत अच्छे नहीं हैं। ये तसव्वुर कोई करना बंद कर दे, और अगर कोई शख्स ये समझता है कि हिंदुस्तान ऐसे चल के कहीं तरक्की पे जाएगा, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब क़यादत की तरफ अगर आप निगाह डालें तो अब स्टेट्समैन नहीं है, अब लोग एक्टर हैं, एक्टिंग करके हुकूमत को बेवकूफ बनाते हैं और जनता को बनाते हैं। मैं बहुत आपका मशकूर हूँ, और मैंने कुछ सख्त बातें की हैं, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है, और मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि शायद
कोई ऐसा मसीहा पैदा हो जाए, कोई ऐसा आज शख्स पैदा हो जाए जो झूठ को झूठ कहने की और जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रखता हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदि भाई। मसीहा आप ही जैसे लोग हैं, त्रिपाठी जैसे लोग हैं, जो लोगों को जिंदा रखने और जो स्पिरिट को और पॉजिटिव रखने की जो है कोशिश करते जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं उस हिंदुस्तान में जिसका बहुत ही फिलहाल बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो हमको स्ट्रेंथ मिल रही है वही है कि एक अपोजिशन में बहुत से अभी सिविल सोसाइटी में लीडरशिप है जो कोशिश कर रही है, कोशिश ही कर सकते हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट फेज होता है हमारे यहाँ, वो क्वेश्चन आंसर का होता है। इसमें बहुत से ऑडियंस में लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो डॉक्टर रफत हुसैन हमारे साथी वो मॉडरेट करते हैं इसको। तो नाउ आई एम गिविंग हैंडिंग ओवर टू हिम टू टेक द क्वेश्चन आंसर फेज। रफत। थैंक यू रजी भाई। अस्सलाम वालेकुम अदीब साहब। जो है क्वेश्चन आंसर में दो तरीके हैं सवाल करने के। या तो आप अपना डिजिटल हैंड जो है रेस कर दीजिए, दूसरा तरीका जो है कि आप चैट बॉक्स में लिख दें आई हैव ए क्वेश्चन। सो कुछ सवालात ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं गुजारिश करता हूं नज़ीर साहब से। नज़ीर साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नज़ीर अहमद। Assalamu alaikum. Namaste. Just by way of introduction, I'm Dr. Nazir Ahmed, NASA scientist, former member, Karnataka Legislative Assembly, and also former member, Karnataka Knowledge Commission. My question relates to the emergence of the RSS as the most potent political force in modern India. This is something new that has never happened, a combination, a confluence of ideology, politics, and a toxic political identity. So I ask you, isn't a discussion of secularism in modern India an academic exercise until Hindutva goes through an internal transformation? That's the key word, an internal transformation, and defines a tolerant, inclusive, and accepting political identity. And do you see any signs that the RSS is evolving in this direction? Because all we hear is political murders in Bangalore and Kalaburgi and other places. Please, thank you. कौन एड्रेस करेगा, त्रिपाठी साहब या अदीब साहब या दोनों लोग? नहीं, अदीब साहब आप कुछ कहें इसमें? अदीब साहब आप म्यूट हैं। ओके ना। I don't think RSS is going to change their ideology, because this was basically with the concept that India should be declared a Hindu state, and that is why they always attack it. You know, when till 1968, they never accepted the Indian Constitution. They never accepted the Indian flag. And they said, no, we are not going to do it. And this is a proof, because, you know, the head guy and Sarwarkar both said we are not going to accept secular India, because they said that Pakistan has already been created in the name of Islam, in the name of Muslims. So we should have a Hindu state, without realizing the Hindu state. It was a Mughal state for so many years and Muslim state for so many years. But it was not a Muslim state. It's a composite culture. It was, you know, like in Aurangzeb time, the maximum number of Hindus were on top position, because you cannot run that big country with so many diverse population.
But this is the madness. This is what I said. It's not communalism. It is inferiority complex. They still, मैं याद है कि 1968 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था. I found only 2-3 Indians in whole of Australia because I was in all the universities being the leader of the Indian delegation. 4 or 5 Indians I met hardly. And when after 40 years I went to Australia, every department there is a Muslim Indians on top. Instead of saying that India has developed so much in the West, they said, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर said कि हमारी तो सर्जिकल स्ट्राइक थी और हमने तो गणेश जी को सर्जिकल उससे बना दिया था. ये कॉम्प्लेक्स है. So you cannot change their mindset. A new story, as I told you, so many big Hindu Rajas are creating. There is no historical fact about it. But the thing is that each and every caste have their own hero who has given a tough time to Muslim rulers. This is the thing they are creating in the minds of the people. Really. Rafat, you have to unmute. Yeah. Okay. Rashid Mutala साहब. थोड़ा brief रहें आप लोग, थोड़ा brief questions. Please ask brief. Okay, what I'd like to say is that thank you very much to both the speakers for excellent presentations. But my question more refers to the situation at the moment where if we take Mohandas Karamchand Gandhi was called to South Africa, which is where I'm from, where Shireen is at the moment, by a Muslim merchant to fight on behalf of him against in a case. While he was there, he assisted the Indians greatly in their fight against the smart government of the European Caucasians who were there. However, as time went on, Gandhi actually tried to help the Indians, but in a way that he's tried to be racist towards the Africans. And in a BBC documentary, it said, when they asked the question, was Gandhi a racist? They said before 1906, definitely yes. 1906 to 1913 qualified, yes. After 1913, increasingly no. So my question is simple. Gandhi was able to suppress the Hindutva within him and change in all those decades. Do we think that the current leaders will be able to follow in his thinking, or are we going to find a greater suppression of democracy despite the world coming down so strongly against India in its thoughts in all places of the world, except for the fact that India is using its money to try and get people to forget its racism and its fascism? Please, once more, please ask questions. The last question is, we have shortage of time. No. Okay, the last part of the question I'll repeat, that just as Gandhiji was able to change from 1906 from a racist toward black people towards increasingly not being racist, is it possible for the current leaders of Hindutva to follow in Gandhiji's footsteps? Or are we going to find that India is going to become even more and more a pariah in the world, using its money to try and prevent itself from becoming a pariah? Thank you, Rashid Saab. Okay, go ahead, please. Can I say a few words? Yeah, Tripathi ji. I think Gandhi, right from 1893 to 1914, during his entire stay in South Africa, he was never against the color, means the Negroes, never. Gandhi was never a racist, never. Though he was fighting against color discrimination against the Indian community on the strength of Indian people. But so one blame some people can put, and that could be that why did he not espouse the cause of Negro blacks? But Gandhi was confronted with a very narrow problem
And he wanted to, on the strength of Indian community, which was underprivileged community, only 3% people, and majority of them very poor. So Gandhi developed a doctrine how to fight a racist imperialist regime without arms, without wealth, without media support. So, but RSS is primarily a imperialist or elite-centric ideology, and dominance, political dominance, power dominance is in its blood. Just like imperialism cannot become socialist, imperialism cannot become democratic. So RSS people may become, some of them may become secular, maybe they may quit, that is possible. Well, human nature is very quite flexible. So that may be a possibility. But as far as the organization is concerned, its ideology is concerned, as Adib Sahib has rightly put, change of heart is not a matter of a speculation or whether it's feasible or not feasible. It's not a question of debate. What is important is that the current state, forget the RSS, the state, Indian state, which is currently ruled by RSS political wing called BJP and its allies, that institution can be forced to change its policies, imperialistic policies. I think they need to revert many of their laws which are anti-people, which are sectarian, which are discriminatory. This is what we can do. And I think we should not wait for elections. This is what Gandhi suggested as the mass movement of people surprising on specific injustices. All right. Thank you. मैं इसमें एक बात आपको एक बड़ी दिलचस्प बताना चाहता हूं। आप लोग जानते होंगे विशंबरनाथ पांडे बड़े नॉन गांधीनियन थे और बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन थे। उन्होंने मौलाना अली मियां ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी, जिसमें मैंने 10 साल उनके साथ काम किया। तो वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 94 की बात है, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद। उसमें सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया गया, बट ही रिफ्यूज टू इनवाइट अटल बिहारी वाजपेयी। वी कंसीडर अटल बिहारी वाजपेयी इज द मोस्ट मॉडर्न एंड much better leader of the Congress BJP party. And then Shahabuddin Sahab and so many people said कि वाजपेयी को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि Shahabuddin Sahab very close to Vajpayee. He refused to say, but ultimately he said कि now I will disclose what is happening. And then he said कि मैं 47 में उनको जेल में थे और उनके एक दोस्त थे वो भी जेल में थे, एंड दे डिसाइडेड कि हम जब शादी करेंगे तो अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी हुई और मेरे दोस्त का बेटा, और दोनों की हमने शादी की, और वो होने वाला जो उनका दामाद था, जो बाद में दामाद हुआ, उसको इलाहाबाद में रह के उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि वो वहाँ के गवर्नर वो थे, मेयर थे। उन्होंने कहा वो उनका दामाद आर्मी का जनरल बन के रिटायर हुआ। देन ही डिस्क्लोज्ड विद वीपिंग आईज, उन्होंने कहा कि ये मेरा अकेला दामाद है, मुझसे कहता है कि मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुसलमानों के लिए जो नफरत है वो दिल से नहीं निकलती। Then he started crying. He said कि क्या किया मैंने, तुम्हें कुछ गलत पढ़ा दिया और तुम उसके बेटे हो, मेरे दामाद हो, तुम्हारे दिल में नफरत क्यों है? तो उसने कहा जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो मैं 6 महीने तक शाखा में जाता था, और वो मेरी नफरत आज तक, मैं रिटायर हो गया, अभी तक नहीं निकली। Just imagine what type of education they are creating in the minds of the people. So please never think about it. They are on a mission. They are working from 1925. And we sometimes became liberal and sometimes became this thing, but they have a typical target. They hate
non-Brahmins, they hate Dalits, they hate Muslims, they hate Christians. There's a different concept of their life. चलिए दूसरा क्वेश्चन भाई जी रफत। शुक्रिया। अनवर नसीम साहब, क्या? अनवर नसीम साहब प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं टोरंटो में रहता हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू की सबने, त्रिपाठी साहब, और मैं इन पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि हर बात जो आपने कही वही मेरे दिल में है। मैं 85 बरस का हो गया हूँ। लेकिन मेरी एक सिर्फ तजवीज़ थी जो पहले भी मैं डॉक्टर राजी साहब से गुजारिश की थी। मैंने एक एब्रीविएशन आज कोई 15-20 साल पहले जापान में एक गुफ्तगू मेरे उन्होंने मुझे बुलाया था कि कोई हैप्पी और बैलेंस सोसाइटी क्या होती है। तो मैंने वहाँ एक NGI, नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल, ये हुकूमत तो है ही जो कर रही है वो आप सबने बताया, NGOs भी हैं और हर NGO के पीछे भी जैसे शीरी ने मेंशन किया कोई ना कोई डायनामिक इंडिविजुअल होता है। तो गुजारिश मेरी सिर्फ यही है, पहले भी बाकी सारी बातें खूबसूरत है, कि अगर ये मुमकिन हो सके कि मुझे या और हम जैसे लोग जिनकी सोच इस अंदाज की है कि हम अपना ईमेल्स एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकें। मैं साउथ अफ्रीका भी गया, मैं रॉबिन्स आइलैंड में भी जा चुका हूँ। अनवर साहब आपका सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है जी कि मेरी तजवीज़ है, यानी इस तारीफ के बाद और आप जो कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन जैसे लोग, आप डॉक्टर रजी ने भी कहा कि जो मुआशरे में बड़ा मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं, अगर वो एक दूसरे से ईमेल के जरिए एक दूसरे से वाबस्ता रहें इन गुफ्तगू के अलावा, तो शायद कोई बेहतरी की सूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वी विल थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट पर्सन इज इल्तिफात हसन। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। जी शुक्रिया रफत। एक बहुत छोटा सा सवाल है, अगर कश्मीर अनेक्स नहीं होता, अगर कश्मीर का फैसला पाकिस्तान जाने का हो जाता, तो जो ये नफ़रतें हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जो कि फिर हिंदू और मुसलमानों में भी होती चल रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मसला है कश्मीर का फेस्टरिंग वुंड। अगर शेख अब्दुल्ला जैसे लोग पाकिस्तान के साथ चले जाते तो ये जो एक ज़ख्म है जो कि पिछले 70 साल से चल रहा है, शायद इतनी नफ़रतें नहीं होती, इतनी जंगें नहीं होती तीन, और जो फ्यूल मिलता है दोनों तरफ के लोगों को, वो शायद वो फ्यूल नहीं मिलता। जी अदीब साहब, क्या कश्मीर मसला है? देखिए, कश्मीर के लीडरों ने 24 घंटे के अंदर 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। जिना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, और ये उनका इतना बड़ा एहसान था इस मुल्क को सेकुलर बनाने का। अगर कश्मीर भी चला जाता तो फिर ये मुल्क फिर हिंदू राष्ट्र बनता, और ये हिंदू राष्ट्र अगर बनता तो आज आपको मालूम ही है कि 50s में ही तमिलनाडु में अन्ना दुराई ने तमिलनाडु को डिक्लेयर कर दिया था अलग स्टेट बनाने की, लेकिन उस वक्त नेहरू की क़यादत थी, उन्होंने कहा भाई डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर ताराचंद को भी यही हुआ था। तो ये कहना कि कश्मीर अगर चला गया होता तो फिर ये मुल्क ठीक हो गया होता, मैं नहीं समझता। कश्मीर तो वो चीज थी जिसने इस मुल्क के इस पूरे तस्वुर को कायम रखा था। ये अलग बात है कि हमने उनके साथ नाइंसाफी की है, ये अलग बात है। लेकिन आप इससे समझ लें कि अगर कश्मीर निकल जाता तो हिंदुस्तान बहुत ठीक हो जाता। अभी इस कोई सड़क, कोई गांव, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आपके अपनी इमारतें और आपकी मसाजिदें और आपके मकातिब और दरगाहें, इनका क्या अंजाम होता। और यही वजह है कि आज तक कश्मीर के इशू पर हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उसने कश्मीर के साथ आतंकवाद का साथ नहीं दिया है।
क्योंकि उसके सबसे बड़े इंटरेस्ट में यह है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कि कश्मीर विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो वी कैन से यस वी आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंट्री। शुक्रिया अदीब साहब, ये आखिरी सवाल था, मेरे पास चंद मिनट हैं तो मैं 2-4 लोगों को ऑन द स्पॉट जरा कोशिश करता हूँ। एक तो मुअज्जम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, और आमिर भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आमिर भाई नहीं, मुअज्जम साहब। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता था कि जो नियो नाजिज्म बहुत जोरों पे ऊपर उठ रहा है और आरएसएस के जो मीडिया है, टेलीविजन और रेडियो, उस पे मोदी का कोई नाम नहीं लेता। मोदी को कहते हैं महान नेता, और जब अनाउंसर जब कहता है महान नेता तो वो एक स्पेशल सैल्यूट नाजी टाइप की, इस तरह की महान नेता। तो ये इस कदर खतरनाक टेंडेंसीज हैं। और दूसरा सवाल ये है कि इंडिया, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में नॉट सर्वाइव एज अ होल यूनिट, एंड जो आरएसएस वाले मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है, अल्टीमेटली इंडिया माइट स्प्लिट इनटू एट लीस्ट one more part, or it could be more than one states or parts of the country may secede from the union territory, whatever you want to call it. So I just wanted to raise these two questions. Yes, Modi is an individual, RSS is an ideology. So please try to understand this thing. Like Advani, he was an individual. RSS used him and then feel that now he is no more effective. They brought Modi. Now, after Modi, there will be some other one. But the ideology is governing. This is the thing I am trying to tell you. The ideology in the secular parties has won. They are interested in winning elections, nothing else. But the RSS has got an ideology to complete their mission. Sometimes they bring Atal Bihari Vajpayee, sometimes they bring Modi, and sometimes Advani. जब उनका बारूद खत्म तो फिर दूसरा नया बारूद आ जाता है। तो ये you have to do something to stick to the ideology of secularism, the ideology of the basic idea of India. Unfortunately, we don't see any leader anymore in this country. शुक्रिया अदीब साहब जी। इसीलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इंडिया एज ए यूनिट सरवाइव ना करे। अगर यही सिचुएशन रही तो इन द लॉन्ग रन इंडिया माइट स्प्लिट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। I don't know what is that. चलिए खैर 2 मिनट रह गए और एक आखिरी बहुत 2 मिनट। शुक्रिया। बस एक शेर से बात खत्म कर देता हूँ कि पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे मगर, पड़ी है लाश तासुब के दोराहे पे मगर, एक जनाजा है जो कौमों से उठाए न बने। बहुत शुक्रिया। मैंने जरा सा नाहिद साहब से जो है वादा कर लिया है कि वो सवाल पूछना चाहते हैं। कोई नाहिद साहब, मोहम्मद नाहिद सिद्दीकी, मैं इनको मना नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग त्रिवाड़ी साहब। मेरा बहुत छोटा सवाल है अदीब भाई कि सईद हामिद साहब बीच में सऊदी अरब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हैदराबाद और लखनऊ दोनों एक साथ फाल हुए थे। हैदराबाद या दक्कन के मुस्लिम्स हैं, दे हैव प्रोग्रेस्ड, और हम जो यूपी के मुसलमान हैं वो हम और पीछे चले गए। तो आई थिंक जो हमारी बात हो रही है कहीं ना कहीं, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, मुसलमानों में बात कर रहा हूँ, ये नहीं हमें पीछे खींच के ले गया। अभी 20-25 साल पहले लगा आप देख लें कि अलीगढ़ के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था और हमने कुछ नहीं काम किया। तो ये एजुकेशन पे काम करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई शहर है वो सिर्फ हैदराबाद है, और लखनऊ कहीं कुछ बाकी नहीं है। और मैं जब हैदराबाद के जाने के बहाने ढूंढता हूँ, और हैदराबाद एक अकेला शहर है
जिसने अपने को बना के भी रखा है, अपनी कदरों को भी कायम रखा है, अपने अखलाकी कदरों को, जबान को, और एजुकेशन में उन्होंने बहुत मेहनत करी है। इसकी जरूरत हर मुस्लिम बस्ती को होनी चाहिए। लेकिन लखनऊ का भी एक कहानी है, अब उसको वो गॉन केस है, क्योंकि लखनऊ में अब लखनऊ के लोग नहीं रहते। अब गोरखपुर और 500 दूर से लोग भी आके अपने को लखनऊ का ही बताते हैं। तो इसलिए हमने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हमारा ताल्लुक लखनऊ से नहीं है। जी, तो फैसल, जी जी। So Rafat is now over. Yeah, it's over. You wrap up, please. Okay, so I thought I had a question there for it's a personal question to Professor Tripathi. Please. This is very. I think I know it's running late. Go ahead. Go ahead, please. कौन साहब हैं? It's academic. अच्छा, अब्दुल जब्बार. Live in Ivory Tower. What was the trigger in your life for you to become a passionate advocate for social justice? This is very personal. If you want to address that, go ahead. Otherwise, we can do it later. Could you repeat, please, the question? Academicians live in Ivory Tower. What was the trigger in your life for you to become a passionate advocate for social justice? I think for me, I was visiting University of Maryland and I heard the news about Bhagalpur riots. और उस वक्त जब मैं तकलीफ मुझे हुई कि lot of people were killed, तो मैं यूनिवर्सिटी मैरीलैंड से 3 हफ्ते की छुट्टी लेके, where I was visiting on my sabbatical, I came to IIT in Delhi. और दिल्ली में जब लोगों से मैंने बातचीत की, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो हिंदुस्तान में 1000 साल का जो जुल्म हुआ, उसका नतीजा है दिस वायलेंस इन भागलपुर। तो मैंने कहा कि साहब, ये जो मरे हैं भागलपुर में लोग, about 50 Hindus and 900 Muslims, ये तो मजदूर तबके के लोग थे और बाबर के जमाने में और उससे 1000 साल पहले भी तो मजदूर ही रहे होंगे। Can you speak in English? I don't. I'm from Tamil Nadu. Yeah, well, in 1989, Bhagalpur massive riot took place. I was visiting University of Maryland at that time on my sabbatical from IIT Delhi. And in there, I learned about this violence. So I took off for 3 weeks. I came to India. In India, an international conference in plasma physics was going on. I attended, I went to the conference and I gave a note to some people whom I knew. One of them was the director of an institute. So after reading my note, he remarked that, this is a reaction of 1000 years of oppression. Then I told him that the people killed in Bhagalpur are working classes, the laborers, and I'm pretty sure their forefathers at the time of rulers, Muslim rulers or Hindu rulers, must have been the working classes. So whose revenge you are taking from whom? If some injustices have been committed by the rulers and you are taking the revenge from those who have been exploited by the rulers then and rulers now. This friend understood it. But when I returned back to America, I went to a National Institute of Health. During lunch hour, I met some Indians taking their lunch. जब मुझसे मैंने बात की, the same answer they gave, then I realized that it's a very serious poison gone into our veins and we have to fight it. And then I decided that probably I will spend my time in developing grassroots resistance against communalism. All right. Thank you. Thank you. Great stories. Right. Thank you. Let's wrap it up now. So thank you all. Faisal, can you show them to? Okay, as usual, we have the coming Saturday. Our presentation coming Saturday will be on culture and literature. So Dastane Begum Akhtar, Raqs ke Pairan mein Danish Iqbal Sahab, as usual, takes the last Saturday of every month. And he will be joined by Nilakshi, who is a Kathak exponent. And Begum Akhtar will be
seen in Nilakshi's, through Nilakshi's hands and postures, and in her original voice. So please join that, and thank you all. हटा लो फैसल, हटा लो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अदीब साहब से ज़माने बाद आवाज़ सुनने को मिली, त्रिपाठी जी को मुलाकात हुई, आप लोगों ने हालात इंडिया के सुने, देखे, जो फाइट है वो अहेड आपके, वो भी आप जानते हैं। बहुत से लोग फाइट कर रहे हैं, बहुत से लोग डिस्टर्ब हैं, बहुत से लोग बहुत ही पेसिमिस्टिक हैं, बहुत से लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। इट्स ऑल how you view it and how you take it. So thank you all.